जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। खट्टर नहीं खटारा है, लगाओ गोली कितनी लगी है। खट्टर मर गया है, हाय 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 हाय। खट्टर मर गया है, हाय 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 हाय। खट्टर मर गया है, हाय 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 हाय। खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। खट्टर नहीं खटारा है, झूठ का पिटारा है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮੇਨ ਅੱਜ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੀਐਮ ਖੱਟਰ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੈਰੇਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਮੰਗ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪਾੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਧਰਮਪਾਲ ਲਾਟ ਜੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਗਲੇ ਤੋਂ ਦਬੋਚਿਆ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਦਰਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਡੱਬ ਵਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੂੰਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਮਾਰੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਧਰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਉਸ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਸੰਵਾਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਸਲੂਕੀ ਕੀਤੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਫੂਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀਐਮ ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਜੀ, ਸਾਰੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਰਲ ਕੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਧਰਨਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਦੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਹਿਣਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪਹਿਚਾਣ ਪੱਤਰ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਬੁਢਾਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰੇ ਸੀ ਕਿ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਥੀ ਆਏ ਦੋਨੋਂ ਜੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਰਨਾ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਚਾਹੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਪਏ, ਜੋ ਵੀ ਆਦੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅੱਗੇ ਕਦਮ ਇਸ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਕਰਨਗੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ हाँ जी बराजी। मीडिया के साथियों का धन्यवाद। परिवार पहचान पत्र के अंदर जो प्रशासन की तरफ से त्रुटियां रही हैं, इन्होंने घर बैठकर डाटा को अपलोड किया है, उसको ठीक करने के लिए हम पिछले काफ़ी दिनों से प्रशासन के ऊपर दबाव बना रहे थे लोगों को हित में। और प्रशासन ने हमारे प्रदर्शन के बाद गाँवों के अंदर कैंप लगाकर इसको ठीक करने की बात की थी। गाँव के अंदर अगर कैंप लगेगा तो किसी की प्रॉपर्टी आईडी के अंदर, परिवार पहचान पत्र के अंदर लाखों की इनकम है तो उसके घर में जाकर उसका निरीक्षण किया जा सकता है। तो इन चीज़ों को लेकर प्रशासन ने माना था कि हम गाँव में कैंप लगाएंगे। बाद में बार बार मिलने के बाद 28, 29, 30 अप्रैल को प्रशासन द्वारा घोषणा की कि कैंप लगेंगे। लेकिन जो कैंप थे वो सिर्फ अखबारों में लगाए गए, कागज़ों में लगाए गए, लेकिन गाँव के अंदर कहीं कैंप की व्यवस्था नहीं थी। हमारे जिला पार्षद भी और गाँव के सरपंच भी, लोग भी वो जगह ढूंढते रहे जहाँ पर कैंप था। स्टेडियम के अंदर वहाँ अखबार के अंदर आया कि कैंप लगेंगे। हमारे कुछ साथी वार्ड के कुछ लोगों के साथ सारा दिन वहाँ बैठे दे रहे, कोई वहाँ कैंप की व्यवस्था नहीं थी। इन चीज़ों को लेकर हमने 11 मई से धरना शुरू किया था। और जब 13 मई को मुख्यमंत्री जी आए थे, हम इन्हीं चीज़ों को लेकर ये कि फर्जी तौर पर प्रशासन ने कैंप लगाए हैं, उसकी जांच कराई जाए और कैंपों की व्यवस्था कराई जाए। क्योंकि गरीबों के पेंशनें काट दी गई हैं, राशन काट दिए गए हैं और उनकी बड़ी दिक्कतें हो रही हैं उनको परिवार के अंदर, परिवार को चलाने में। तो प्रशासन द्वारा हमारी जाँच की गई। हमारे पास कोई ऐसा स्लोगन नहीं था कि हम कोई विरोध करने गए हैं, कोई काले झंडे दिखाने गए हैं। वरिंदर जी बात को बीच में काटते हैं। जैसे कि गदराना साहब वाला मैटर आया था, वो डबवाली में पहुंचे थे संवाद के लिए कि जो बातें हैं वो रखना चाहते हैं, लेकिन जब उनको बाहर लेके जाया गया तो उनकी जेब के अंदर से काले झंडे मिले। इस चीज़ को आप क्या मानते हैं? हम खैरेका गए थे, प्रशासन ने हमारी जाँच की थी, हमारे पास कोई झंडा नहीं था। उन्होंने कहा था कि जो पार्षद हैं उन्हीं को मुख्यमंत्री से मिलवाया जाएगा ज्ञापन के साथ, और इनको 2 घंटे वहाँ धूप के अंदर खड़ा रखा गया। लेकिन जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो अधिकारियों ने कहा कि सर समय नहीं है, आप डबवाड़ी में आ जाओ, कालावाड़ी में आ जाओ, खैरेका में जगह समय नहीं है, तो कहीं और व्यवस्था करवाई जाएगी। तो आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने कहा जी हम यहीं मिलेंगे, 1 मिनट लगेगा, हम ज्ञापन दे के जाएंगे। तो वहाँ अधिकारियों ने धक्के मारने शुरू करे। तो जो बाकी साथी थे उसके बाद उन्होंने नारे लगाए थे, किसी के पास काला झंडा नहीं था।
कुलदीप गदराना जी की जेब में से झंडा मिला था। वो कुलदीप गदराना जी की सोच क्या थी उस समय वो बता सकते हैं, लेकिन हम जो पार्टी की तरफ से गए थे हमने नारे जरूर लगाए थे, लेकिन प्रोग्राम खत्म होने के बाद किसी के पास काला झंडा नहीं था। आप सभी मीडिया के साथी वहाँ थे, आपने कहीं काला झंडा हमारे पास नहीं था, क्योंकि हम विरोध करने की मंशा से नहीं गए थे। हमारी मंशा थी जो गरीबों को समस्याएं आ रही हैं उसके ऊपर काम होना चाहिए, और मुख्यमंत्री जी से हम निवेदन करने गए थे। उसके बाद हमारा धरना लगातार चल रहा है, और ये जो फर्जीवाड़ा किया गया कैंपों में इसकी जाँच हो और गांवों के अंदर कैंप लगाए जाएं ताकि लोगों की दिक्कतें दूर हों। उसको लेकर आज हमने उन मांगों को लेकर मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंका है, क्योंकि 12 दिनों से ना तो कोई प्रशासन का अधिकारी आया है, और मुख्यमंत्री जी जब आए थे तो उनको ज्ञापन भी नहीं देने दिया गया प्रशासन के द्वारा, क्योंकि प्रशासन को डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं है कोई बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जिन्होंने कागजों के अंदर किया है उसकी पोल खुलने जा रही है। इसीलिए वायदा करके मुकर गया प्रशासन, और मुख्यमंत्री जी तक नहीं जाने दी हमारी बात को। जी जी, पहली बात है ये हमारा जो फैमिली आईडी में गड़बड़ियों को लेके ये था धरना चल रहा है, उसमें भी दूसरा जो मुख्यमंत्री का पिछले दिनों जो जनसंवाद कार्यक्रम था, हम सब ने देखा कि वो किस तरह का जनसंवाद था। वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं का मात्र वाहवाही कार्यक्रम था और कुछ नहीं इस जनसंवाद में, क्योंकि इस जनसंवाद में जहाँ पे ये कह के कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता इनको उठाओ और पिटो, और किसानों पे जिस तरीके से लाठीचार्ज किया गया। मैं खुद 2 दिन हिरासत में रही, एक दिन रात को 9 बजे तक, दूसरे दिन रात को 8 बजे तक, और हमें किसानों के साथ लाठियां खानी पड़ी। महिलाओं को घसीट घसीट के बसों में डाला गया, उसमें मैं भी खुद भी इसमें शामिल थी। और हम पे, और ये एक भाई वो आपके पीछे है खड़ा है, उस पर भी FIR तक हम पे दर्ज करी गई है। उसके बाद ये है कि बणी में भी जिस तरीके से हमने महिला से देखा कि सलूक हुआ है, तो ये मुख्यमंत्री की अभद्र भाषा को दिखाता है कि किस तरीके से राजा व्यवहार कर रहा है, वो हम सब देख रहे हैं। उस चीज़ के विरोध में आज हम पुतला फूंक रहे हैं, और कल भी हम डबवाली में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान रोष मार्च कर रहे हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से किसानों पे बिना वजह लाठीचार्ज किया गया, और जैसे कि आपको पता है कि ना कोई किसानों के पास भी ना कोई काले झंडे थे, ना हमारे आम आदमी पार्टी के साथियों के साथ काले झंडे या काले बैज किसी तरीके थे, लेकिन उसके बावजूद जो प्रशासन का रवैया है, जो सरकार का रवैया है, और जिस तरीके से ये इमरजेंसी वाला हाल सरकार ने किया हुआ है, सरकार होती ही लोकतंत्र में सवाल जवाब के लिए, और जो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का नाम ही जनसंवाद है, तो फिर इसमें लोगों को शामिल होने की में मुख्यमंत्री को समस्या क्या थी, मुझे यही समझ में नहीं आता। तो हम बराबर लगातार करते रहेंगे। आज हमने यहाँ पे सिरसा में पुतला दहन किया है, कल हम डबवाली में फिर किसानों के साथ रोष प्रदर्शन करेंगे, जिसमें कामगार यूनियन होगी, C2 भी होगी, किसान भी होंगे, और सभी के साथ। और इस तरीके से अगर सरकार का रवैया यही रहा तो हम भी अपना रोष प्रदर्शन पुतले दहन करके और धरने प्रदर्शन करके लगातार करते रहेंगे।